Hello, welcome and welcome back to my channel. So this is day 30 and this is the last day of this Quant Mantra magazine and आज के questions थे for mains. This was my total time to solve all the questions. Starting with the DI, यहाँ पे दो types of biscuits है जो एक seller sell कर 5 sellers sell कर रहे हैं and some data are given. Also the pie chart is based on degrees. एक चीज़ यहाँ दिया है दैट द x and y which is there in the pie chart, the value of x is more than 2 and y is not 6, but the value of x and y is a single digit consecutive even number. So दो possibilities तो होते हैं. अगर x 2 से ज़्यादा होगा so x is 4, consecutive even number that means y is 6, but यहाँ 6 नहीं हो सकता. So only possible case is x as 6 and y as 8. तो अगर हम x यहाँ 6 और y और as 8 पुट करके चेक करेंगे so you will get the sum as 360. So that makes it easy for us कि x 6 होगा और y जो होगा वो है 8. एक और चीज़ दिया है that in every seller sells the Parle and Magic biscuit in the ratio 3:2 and the Magic biscuit sold by A is 288. So if Magic biscuit sold by A is 288, ratio 3:2 में है तो ये 432 होगा, total is 720 and E में जो हम लोग का डिग्री है that is 108. So you will get the total number of biscuits as 2400 and once you get this you will easily get the total biscuits sold by all the sellers क्योंकि डिग्रीज तो हम लोग के पहले से आ ही चुकी थे और यहाँ रेशियो 3:2 में ही होगा हर सेलर का. So with this you will be able to get the values of the table easily. Once the values are solved you can easily solve all the questions. ये सब सिंपल था, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस है. कमिंग टू दिस DI विच इज़ नंबर 6, ये इनका क्वेश्चन है. First thing, apart from the variable in this question, we can see that boat Q can cover a distance of 360 in downstream in 6 hours. तो downstream speed of boat Q क्या हो जाएगा, वो होगा 60. Also लास्ट में एक रेशियो दिया हुआ है, the ratio of speed of boat of P in downstream and upstream is 5 and 3. तो अगर हम इसको इसका एवरेज लेंगे ऐड करके so we will get this the ratio of P in still water. So 5 plus 3 is 8 and उसका half is 4 and इधर एक रेशियो दिया हुआ है that the ratio of speed of boat in of P and Q in still water is 4:3. तो यहाँ P का डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रेशियो था, उसको हमने स्टिल वाटर का निकाला इसका एवरेज और यहाँ ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ था स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ P एंड Q. सो इफ़ दिस इज़ 4 देन द स्पीड ऑफ Q इन स्टिल वाटर इज़ 3x. को भी हम x ही लेते हैं. एक चीज़ हम लोगों ने जो देखा दैट 360 डिवाइडेड बाई 6 आवर्स इज़ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट Q विच इज़ 60. तो यहाँ स्टिल वाटर में 3x है, स्ट्रीम x लिया है हम लोगों ने, तो 4x इज इक्वल टू 60 एंड x यहाँ पर 15 आ जाएगा. वंस यू गेट x एज 15 यू विल बी एबल टू गेट द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ P. फर्स्ट में बोला था कि स्पीड ऑफ बोट P इन डाउनस्ट्रीम इज y प्लस 25 और नीचे रेशियो डाउनस्ट्रीम ऑफ P का है 5:3. x हम लोग का निकल गया है. सो विद दिस वी कैन एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ y. This is the downstream speed, x is 15, so 75 is equal to y plus 25. y हम लोग का आ गया 50. They are saying the speed of boat R is y minus 10 which is 40. y 50 निकला तो ये speed हो जाएगा 40 and it can collide boat S which is 50 kilometer ahead of it in 5 minutes when both are traveling in same direction. मतलब total distance जो है between R and S is 50 एंड टाइम उनको लगता है 5 आवर्स. स्पीड इज़ रिलेटिव स्पीड इज़ 10 एंड यहाँ उसका आर का स्पीड है 40 इन द सेम डायरेक्शन तो माइनस होगा. का 40 है, एस का कुछ मुझे नहीं पता क्या है एंड हम लोग का जो रिलेटिव स्पीड है वो है 10. 50/5 इज़ 10. सो फ्रॉम हियर विल गेट द स्पीड ऑफ एस एज 30. So once you do this you will get this downstream and upstream speed of P, Q
RS and individual speed in still water as well, and speed of stream is 15. After that the questions are easy and simple. फिर आता है नंबर 9 वाला क्वेश्चन. इसमें ये ऑप्शन के थ्रू मैंने सॉल्व किया था. हर एक ऑप्शन को मैंने पुट करके देखा. सो ऑल 3 वर गोइंग. फर्स्ट था 1500 एज CP एंड हम लोग उसको मार्कअप करते हैं 40% से, विच इज़ 2100. And the profit here in the option was 33.33% of this, which is 2000. Difference is 100, which is matching with the option 1. 2 में भी CP इतना था, 40% मार्कअप से इतना हो जाएगा. यहाँ प्रॉफिट 20% दे रहा है. सो 20% ऑफ दिस इज़ 3000. डिफरेंस इज़ 500. दैट इज़ द डिस्काउंट. ये मैच कर रहा है. 3 भी मैच हो रहा था. 1000 CP है, 40% मार्कअप इतना हो जाएगा. एंड इधर प्रॉफिट 20% है. डिफरेंस दैट इज़ द डिस्काउंट इज़ 200. सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स वर ट्रू. क्वेश्चन भी बिजनेस पार्टनरशिप का था एंड इट वाज आल्सो वी वर एबल टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. और एस का इन्वेस्टमेंट 1500 एंड 1800 था. सो आई जस्ट टुक द स्मॉलर, मेड इट स्मॉल सो दैट हम लोग को कैलकुलेशन में इजी हो जाए. सो दिस इज़ 5:3 एंड ऑप्शन में एस जो है वो एस 6 मंथ्स बाद ज्वाइन करता है आर को. सो दिस इज़ द रेशियो 5:3 विच इज़ द प्रॉफिट रेशियो गिवन इन द ऑप्शन. बाकी के 2 ऑप्शंस जो है वो भी हम लोगों ने ट्राई किया था बट इट वॉज नॉट गोइंग. सो ओनली 1 इज़ ट्रू. And with this we completed all the 30-day target of this particular Quant Mantra magazine. And आज ये questions थे. And I feel after 30 days I can tell you that मेरा जो speed है वो बहुत ज़्यादा improve हुआ है. Also I got to learn a lot of concepts that I was not clear with, and this was really helpful with टू डू लिस्ट. एज हर दिन में ये काम ये क्वेश्चंस है ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपका क्या अप्रोच था टुवर्ड्स दिस क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे एंड व्हाट वाज योर टाइम. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.